Hello everyone. We're going to start the chapter 4 of the Indian Contract Act. And as we have discussed in the last class, we have completed till section 40 of the Indian Contract Act. And under that, we have already discussed like who are the parties to the contract, what are the obligations of the parties when the two of the parties are entering into a contract. Then what is the obligation of the parties, what is the nature of the contract, and how the promise need to be performed. We have already discussed in details about all those things. Okay. So, coming to the next point, today we are going to. Okay, so we have also discussed till section 40 in the last class, in which we have discussed person by whom the promise is to be performed. And yes, if there is a person who is who has the responsibility to perform the contract personally, then this is the whole responsibility of that particular person to perform the whole contract in its own way. Okay, that we have already discussed in the last class. Just like let me give a quick glance about the section 40 what we have discussed. Person by whom the promise is to be performed, if it is appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to the contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. In other cases, the promisor or his representatives may employ competent person to perform it. So in this section, what we have understood, I have already explained you with certain of the examples. Just like if, for example, I am a painter. I know how to paint, okay, and I do the very oil ads in a very finishing manner. मैं बहुत अच्छा जो तैलचित्र होता है ना किसी इंसान का आर्ट करना तैलचित्र बनाना, मैं बहुत अच्छे से वो काम कर लेती हूँ. तो क्या होता है ना मेरे को एक मतलब देयर इज ए पर्सन हु इज कमिंग टू मी, जो कि मेरे को आके ये बात बोलता है कि आप मेरे लिए एक मतलब पेंट है ऑयल पेंट है मेरे लिए आप एक बना दो, एंड उसके बदले आई एम गोइंग टू पे यू 5,000 ऑफ द रुपीज. 5,000 रुपया लो मेरे लिए एक ऑयल पेंट बना दो. मैंने बोला कि ठीक है बना दूंगी कोई बात नहीं. बट when it comes to the time of the performance, then what the contract says, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने उससे पैसा लिया 5,000 ऑफ द रुपीज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बाय माई सेल्फ. मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट खुद से परफॉर्म करना है, वो ऑयल पेंट में खुद ही करना जरूरी है बिकॉज आई एम ए गुड पेंटर. ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई स्टूडेंट है या फिर कोई दूसरा इंसान है जिसको मैं जानती हूँ, मैंने उसको आपका ये काम ट्रांसफर कर दिया और बोला कि देखो यार आपने उनके लिए बना दो. ऐसा तो नहीं हो सकता. सो अंडर सेक्शन 40 इट एग्जैक्टली स्पीक्स दैट कि प्रोमिजर और प्रोमिजी जो दोनों पार्टी होते हैं ना, अगर प्रोमिजर ने प्रोमिजी को ये प्रॉमिस किया है कि नहीं आपका काम मैं और किसी को नहीं देने वाला हूँ या और किसी को नहीं देने वाली हूँ, आपका काम जो है ना तो मैं खुद ही अपने से वो काम करूंगी एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटी बाय माई सेल्फ. अगर ये ऑयल पेंटिंग बनाने का बात आ रहा है देन आई एम गोइंग टू पेंट इट बाय माई सेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द वर्क टू एनी वन, राइट? So in that cases, the contract is considered as a valid contract. But जहाँ पे it is fine to perform the contract through certain representatives, just like we have taken an example in the last class. For example, I told that I have taken the advance payment of 10,000 rupees for the transfer of certain computer goods. मतलब आई एम ए शॉपकीपर जिसके पास एक मतलब कंप्यूटर का जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, मेरा एक दुकान है, राइट? तो आपने आपको मेरे से कुछ सामान खरीदना है, आपने आके मेरे को 10,000 का एडवांस पेमेंट करके गए हुए हैं कि देखो मेरे को ये इलेक्ट्रिक सामान चाहिए, तो आपने क्या करो ना ये सामान मेरे घर पहुंचा दो. मैंने बोला कि ठीक है पहुंचा दूंगा कोई बात नहीं, आई जस्ट डिलीवर इट टू योर होम. बट क्या होता है ना, यूजुअली आई यूज टू डिलीवर माई माइसेल्फ, मैं खुद से वो डिलीवरी करती हूँ. बट ऐसा होता है कि मैं कुछ दूसरे काम पे एंगेज रह गई या फिर आई एम somehow busy. So what I can do over here that I can send up some of my representative in my place to deliver the goods at your home. मैं खुद नहीं जा सकती हूँ तो मैं अपने बेटे को भेज सकती हूँ, मैं अपने भाई को भेज सकती हूँ, मैं अपने कोई स्टाफ को या फिर मेरा भी कोई भी
कर्मचारी हो जो मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको भी भेज सकती हूँ सामान देके कि चलो जाओ आप ये सामान उनके घर पे डिलीवर करके आ जाओ करके, आपका एड्रेस देके बताती हूँ उनको। तो दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो वर्क्स। बट ये कौन सी चीज पे होते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। अगर इट्स अबाउट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जहाँ पे इवन इफ खुद खुद द प्रोमिसर जो है अगर खुद से वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है तो चलता है, देन इन दैट केस इट्स फाइन। बट जहाँ पे प्रोमिसर खुद प्रॉमिस किया कि नहीं ये डिलीवरी मैं खुद ही करूंगा, ये पिक्चर मैं खुद ही बनाऊंगा, देन इन दैट केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रोमिसर खुद वो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं रहा तो, बट इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। जो सामना वाला पार्टी है ना उसका डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करता है। अगर उसका मंजूर है कि हाँ ठीक है आप नहीं कर पाए, आपके बदले और किसी ने कर दिया एंड आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ द promisee is okay with that kind of promise कि हाँ ठीक है, in except the promiser, if there is any third person is fulfilling the contract, then the promisee should be okay with that decision. Clear? Then coming to the next part under section 41, it speaks about the effect of accepting the performance of the third person. And I have already explained you with a very clear example in the last class, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि मान लो there is a situation जहाँ पे you have paid me 5,000 rupees to do a art of yours। अपने खुद का एक पिक्चर बनाने के लिए या फिर अपने खुद का एक ऑयल पेंट बनाने के लिए मेरे को 5,000 रुपीज पे किया है। बट मैंने क्या किया, मेरे पास वक्त का कमी है तो आई कॉल्ड यू बैक एंड आई सेड यू कि देखो मैम, आपका जो ये चीज आपने मेरे को दिया है ना मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज आई एम बिट बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या करती हूँ, इफ यू आर ओके विद दिस, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द सेम टास्क टू अनदर पर्सन। हु इज दैट पर्सन? दैट पर्सन इज माई सन। मान लो मेरा बेटा है, उसको आता है बहुत अच्छा ऑयल पेंटिंग बनाना, वो मुझसे भी अच्छा बनाता है। तो क्या करते हैं ना, मैं नहीं बना सकती हूँ, मैं नहीं बना सकता हूँ, बट मैं अपने बेटे को बोल देता हूँ वो आपके लिए बना देगा। ओके, देन आफ्टर लिसनिंग टू दैट आपने बोला कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा भी बना सकता है, राइट? बट व्हेन द पेंटिंग इज रेडी, तभी भी मैंने आपको पेंटिंग जब डिलीवरी किया कि देखो मैम मैं तो बना नहीं पाई, तो बनाया किसने? मेरा बेटा ने बनाया, वो मेरे साथ काम करता है। तो आर यू ओके विथ इट? आपने बोला कि हाँ ठीक है आई एम ओके विथ इट, आप खुश हो गए, आप मेरे को 5,000 रुपया भी पेमेंट कर दिया। बट मान लो आफ्टर टेकिंग द पेंटिंग, अब जब उसको अच्छे से देखा ना आपको लगा कि नहीं और थोड़ा अच्छा हो सकता है, देयर मस्ट बी सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स दैट वाज नीडेड। तो आपको ना उसी में चेंजेस चाहिए, आपको उसी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं ये पेंटिंग मेरे पैसे के हिसाब से सही नहीं है, बट द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर, कैन यू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी फॉर दैट? क्या आप इस बात को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिकॉज समहाउ यू हैव एक्सेप्टेड दैट। एक बार अपने थर्ड पर्सन से या फिर तीसरा पार्टी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है, अगर आपने एक बार उनसे सामान एक्सेप्ट कर लिया ना, उसका मतलब आपने उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट डन कर दिया है, आपने पैसा दे दिया, आपने उससे वो थर्ड ऑयल पेंटिंग जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। सो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, यू डोंट हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। आप उसी के खिलाफ कोई भी आवाज उठा नहीं सकते। ओके, क्लियर? देन I got a call. Okay. So this was about the performance of the contract by the third party, जहाँ पे मैंने आपको ये बात बोला कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है एंड आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट वंस यू हैव accepted the contract, once you have accepted the terms and conditions, and once you have accepted the goods from the third person, you cannot sue the promiser for this. That means जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने मेरे को पेंटिंग का काम दिया था, मैंने अपने बेटे को वो काम अपॉइंट कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं अपने बेटे को दे रही हूँ,
तो आपने बोला कि ठीक है आपके बेटा कर देगा, तो ठीक सही बात है। बेटा ने किया, आपने उसी को लिया, आपने मुझे पैसा भी दे दिया। तभी आप अगर मेरे अगेंस्ट जाके कोर्ट पे बोलोगे कि अरे यार मैंने तो इस इंसान को पैसा दिया था, मेरा काम सही से नहीं हुआ तो मेरे को पैसा वापस चाहिए, मेरे को अगर मैम ने बना के देती तो बात अच्छा रहता, बट उनके बेटे ने बनाए, हमारा मतलब मन नहीं लगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बात पे ना आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज द पॉइंट इज क्लियर कि आपने पहले से ही, मेरे बेटा ने जो बनाया था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड इट इज डन, डील इज डन, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इफ यू हैव एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द थर्ड पार्टी वंस, देन यू हैव टू बी एग्री विथ इट, आपने उसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ओके, क्लियर? देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जहाँ पे हमने बात की थी अबाउट सेक्शन 42, इट स्पीक्स अबाउट द डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉइंट लायबिलिटीज? जॉइंट लायबिलिटी मतलब, जॉइंट मतलब क्या होता है, एक से जहाँ पे हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब वहां पे बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी। दैट मीन्स, मान लीजिए आई एम परफॉर्मिंग ए काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं, मान लो आई एम ए टीचर, ओके, I am, you are taking admission for the learning of the courses, okay? तो मान लो मैं अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया, तो मैं वहां पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, okay? तो मान लो आई एम हैविंग द एक्सपर्टाइज इन द एरियाज ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ, तो मेरा एक पार्टनर है जिसको क्रिमिनल लॉ का एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम साथ में काम करेंगे, वी आर गोइंग टू सेट अप ए कोचिंग सेंटर जहां पे हम साथ में पढ़ाने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट। ओके, तो ये बात हो गई मेरे और मेरे पार्टनर के बीच। तो यहाँ पे हमारे पास जितने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उनका कॉर्पोरेट लॉ का जो भी सारा टॉपिक्स है उसको कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगी। अगर क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड कोई टॉपिक है, कौन पढ़ाएगा? मेरा पार्टनर पढ़ाएगी, राइट? तो यहाँ पे ना हम दोनों के बीच में जो डील डन हो गया, जो लायबिलिटी आया हम दोनों के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट लायबिलिटी, एंड दैट लायबिलिटी इज बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम दोनों के बीच में डील हुई है कि चलो मैं कॉर्पोरेट का डिपार्टमेंट ले रही हूँ, आप क्रिमिनल का डिपार्टमेंट ले रहे हो, मिलजुल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं, जिन्होंने हमको पेमेंट दी है, जिन्होंने हमको पैसा दी है पढ़ाने के लिए, तो उनका जो लायबिलिटी बनता है वो किसके ऊपर रहता है? सिर्फ मेरे ऊपर रहता है, या सिर्फ मेरे पार्टनर के ऊपर रहता है, या हम दोनों के ऊपर रहता है? हम दोनों के ऊपर रहता है, क्योंकि वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टेकन द लायबिलिटी जॉइंटली। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना मिल के लिया है, ये डिसीजन मिल के ही लिया है, जॉइंटली लिया है, सो दैट इज कॉल्ड द जॉइंट लायबिलिटी। क्लियर? then the next point it comes that each promiser may compel to contribute. Okay, तो पहले आपका जो सेक्शन 42 क्या बोलता है, लेट्स हैव ए स्मॉल लुक अप ऑन दैट। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. Okay, so कुछ समझ में आया? मतलब सेक्शन से एक बार रीड आउट कर लो, सेक्शन 42, डिवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट लायबिलिटीज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 42 एक बार पढ़ लो। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? ओके, सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि when two or more persons have made joint promise, जहाँ पे दो से ज्यादा लोगों मिलके कोई जॉइंट प्रॉमिस करते हैं। ओके ओके, एंड यहाँ पे ये बात बोलता है कि बिफोर परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, इफ द पार्टी डाइज, ओके, बिफोर परफॉर्मिंग द प्रॉमिस इफ द पार्टी डाइज, then the legal representatives of that person, of the joint promisers, they are responsible to fulfill the nature of the contract. बात सिंपल सी है। ओके, टेक एन एग्जाम्पल, me and there is another person B. Okay,
वी आर द पार्टनर ऑफ ए कंपनी, हम दोनों ने मिलके एक कंपनी का फाउंड किया है जहाँ पे हम दोनों ही काम कर रहे हैं. ओके, तो you must have heard about the one person company, limited liability partnership, all those things you must have heard. मान लो this is a limited liability partnership जहाँ पे मैं और मेरे पार्टनर काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है ना, there is a person who is मतलब doing a deal with our company. ओके, तो स्पेसिफिकली उसने जब डील डन किया है वो जॉइंटली मेरे साथ और मेरे पार्टनर के साथ डील डन किया है. इट्स नॉट लाइक कि उसने सिर्फ मेरे साथ डील किया है कि हाँ ठीक है मैम, यू आर द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मी. नहीं, उसने मेरे पार्टनर के साथ भी डील किया है कि नहीं मैम के साथ साथ आपका जो पार्टनर भी है दैट पर्सन इज गोइंग टू ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. आप दोनों मिलके साइन करो. तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है मैं अकेले वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं एंटर कर रही हूँ. मेरे साथ मेरा जो दूसरा पार्टनर है सी इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो यहाँ पे सीन क्या हुआ, देयर आर टू पार्टीज. फर्स्ट पार्टी में कौन है, who are the promigers, me and my partner. Who is the promigee, my customer, the customer of the my company जो मेरे पास काम लेने आया है. that person is the opponent party and उसका opposite party कौन है, मैं and मेरे partner, the founders of the company. तो यहाँ पे कुछ चीजों को लेके डील बन गया. ओके, मान लो इट इज अबाउट द डिलीवरी ऑफ द सर्टन गुड्स. कुछ चीजें हैं उसका डिलीवरी करवाना है. सो व्हाट हैपेंस दैट मैंने बोला कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं डिलीवरी करवा दूंगी. बट जस्ट फॉर सर्टन सिचुएशंस ऐसा हुआ दैट आई गॉट इल एंड आई डाइड, मेरा मौत हो गया. उसके बाद क्या हुआ, बचा किसने, मेरा पार्टनर, राइट. तो यहाँ पे माई पार्टनर इज ऑल्सो लायबल द परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर. अगर मेरा भी मौत हो जाता है देन who is responsible or liable to perform the contract? My partner is responsible and liable perform the contract itself. ये गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, मान लो there is the joint liability of itself. जस्ट लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों जॉइंट प्रोमिजर की बात की, अभी हम जॉइंट प्रोमिजी की बात करते हैं. जैसे कि आई एम द ओनली प्रोमिजर, कंपनी मेरा है एंड मैं ही कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रही हूँ, मैं ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रही हूँ. ओके, ये बात मान के चलो. बट हु आर द प्रोमिजी, द टू पर्सन्स प्रेजेंट एट दैट टाइम दे आर द प्रोमिजी. वो जो दो लोग हैं ना उन लोगों को प्रोमिजी माना जाता है. तो वहां पर जो दो लोग हैं दे आर रेडी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ मी. मान लो उनका दो नाम दे दो, बी और सी. बी और सी जो है, आई एम द प्रोमिजर, बी एंड सी द प्रोमिजी. उन दोनों मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करना चाहते हैं. क्लियर. तो मैंने क्या किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील कर दिया कि ठीक है आई एम गोइंग टू वर्क विथ यू एंड आई एम द प्रोमिजर एंड यू गाइज आर द प्रोमिजी. तो यहाँ पे प्रोमिजी कितने हैं, दो प्रोमिजी है. हु एंड हु, बी एंड सी, बोथ आर द प्रोमिजी ओवर हियर. ओके, so what happens that after some days before the completion of the promise, B dies. मैंने किस किस को प्रॉमिस किया था, बी को और सी को प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ गुड्स टू यू. ओके, मान लो बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बी डाइड, बी का मौत हो गया. तो यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता है क्या, सी इज द ओनली अथॉरिटी टू गेट द ऑल द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज इवन इफ B dies, according to section 42 of the Indian Contract Act, the representatives of B jointly with C are eligible to get the benefit of the contract. Okay, that means ये बात बोला जाता है कि मैंने जो डील साइन किया किसके साथ किया, B और C के साथ डील साइन किया. मान लीजिए ड्यूरिंग दैट पीरियड B died, बी का मौत हो गया. बट यहाँ पे द पॉइंट कम्स कि इफ बी हैज बीन डाइड देन
who is going to get the goods on behalf of the B? The answer is the representatives, the legitimate heirs of the B are going to receive the amount or going to receive the properties in the absence of the B. And along with whom? Along with C. तो यहाँ पे when I would perform my joint liability, जब मैं अपना joint liability perform करती, normally करती मान लीजिए, तो वहां पे मेरे साथ कौन लेता responsibility? My partner B, right? तो मान लीजिए if B is died, then who is going to take the responsibility? The legitimate legal heirs of the B or the legal representatives of the B are going to perform the contract in the absence of B, and this is also the same situation for the C जहाँ पे C is dead. In that case the partners of the C or the legal representative of the C are liable or responsible to take up the contract further. Okay, but here also another question arises. मान लीजिए C is also died, B और C दोनों का मौत हो गया, तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा? यहाँ पे जो 1 लाख का या 10 लाख का जो गुड्स का डिलीवरी होना है उसका क्या करेंगे? In that case, the representatives of B and C together can accept the goods. B and C का जो legal representative है, they are liable to accept the goods, to accept the instruments which is about to sell to their ancestors. मतलब उनका जो माँ बाप थे, जो भी थे, B and C जो भी लगते थे, उनका जो सामान है वो किसके पास मिलेगा? उनके फैमिली को दिया जाएगा या फिर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा. ओके, क्लियर? गाइस, कैन यू जस्ट गिव मी 2 minutes? आई एम कमिंग. ओके, बस 2 मिनट दो, आई एम कमिंग. ओके, सो वेयर वी आर कंटिन्यूइंग, कहाँ पे पढ़ रहे थे? या जॉइंट प्रोमिसी के बात में बात कर रहे थे ना, डिवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट लायबिलिटीज. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर I am a person who is doing a promise to B and C. तो अगर promise के बीच में B has died या फिर B का death हो जाता है, then the representatives of the B are liable to get the goods, or I have the responsibility to complete my promise or to complete my liability to the family or to the legal representative of the B. Okay. अगर along with the C, मतलब प्रॉमिस तो मैंने दोनों को किया है ना, बी को किया है, सी को किया है, तो बी को भी अगर बी का डेथ हो जाता है तो बी के फैमिली को दिया जाएगा, फिर बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसको मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगी उसके साथ. नहीं तो अलोंग विथ सी को भी करना पड़ेगा. ओके, तो मान लीजिए देयर इज अ सिचुएशन जहां पे बी का भी डेथ हो गया है, सी का भी डेथ हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, बट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस से पहले ही उन दोनों का डेथ हो गया. तो उस केस पे क्या होगा? सिंपल सी बात होगा. और क्या होगा? जैसे ही बी का रिप्रेजेंटेटिव को मैं सामान डिलीवर कर रही थी या फिर बी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट का डील कर रही थी, वैसे ही बी और सी दोनों का रिप्रेजेंटेटिव को आई एम गोइंग टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट. बट दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सेप्शन इसी के साथ रहता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर भी देखा जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो मतलब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डूइंग ए पेंट, कोई पेंटिंग करने की बात जैसे मैंने की थी. ओके, तो मान लो यू आर जैसे कि वी हैव विनीता, यू आर हियर. ओके, मान लो यू आर हैविंग ए सिस्टर. ओके, तो आपका एक बहन है, तो मैंने क्या किया, आपको और आपके बहन दोनों को जॉइंटली प्रॉमिस किया कि मैं तुम दोनों का पेंट बनाऊंगी. आई एम गोइंग टू डू द पेंट ऑफ यू बोथ सिस्टर्स. बट क्या हुआ ना, प्रॉमिस परफॉर्म करने से पहले ही आई डाइड, मैं मर गई. तो उसके बाद क्या होगा? कैन आई परफॉर्म द प्रॉमिस? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बाद ऐसा कोई है ही नहीं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता है. तो यहाँ पे आप और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भॉइड हो गया. यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव कोई भी है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, राइट? तो दिस परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द रिप्रेजेंटेटिव
और बाय द रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी देखना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। गॉट इट? Then coming to the next point, we have discussed under section 43 that any one of the joint promisors may be compelled to perform the contract. That means if there is the presence of the joint promisor, that means there are three persons A, B and C. अगर ये तीन लोगों ने ना मिलके किसी भी तरह का प्रॉमिस में एंटर कर लिए, किसी भी तरह का प्रॉमिस इन तीनों ने मिलके किया है ना, इफ वन पार्टी इज अनअवेलेबल और वन पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, देन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर टू पार्टीज टू कम फ्रंट एंड फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए बी सी तीन पार्टियां हैं जो कि जॉइंटली कुछ चीजें का प्रॉमिस किया है, इफ द थ्री पार्टीज आर जॉइंट प्रोमिसर इन ए कॉन्ट्रैक्ट, बट ये यहाँ पे ये होता है ए एंड बी दोनों का दोनों किसी भी रीजन के वजह से उनका मौत हो जाता है, या फिर उनका कोई भी फाइनेंशियली दे बिकेम द डेवर्ड, कुछ भी हो जाता है एंड दे आर अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीख अकेले बोलेगा कि नहीं मैं तो यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा जो दोनों पार्टनर है ए एंड बी उन दोनों ने नहीं कर पा रहे, तो मैं बस अपना पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उतना परफॉर्म करके निकल जाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इफ द contract has been signed by jointly three of the parties, then it must need to be performed by the three parties only. Got it? जैसे कि I think it is better to understand this through the illustration. Illustration 1 के बारे में बात करते हैं। A, B and C jointly promise to pay 3,000 of the rupees. Okay. D may compel either A और B और C to pay him 3,000 of the rupees. तो यहाँ पे मान लो A, B and C तीनों ने मेरे से लिया है कितना, 3,000 रुपया, 3,000 ऑफ द रुपीज उन तीनों ने मुझसे लिया है। तो वहां पे उन तीनों ने मुझे जॉइंटली प्रॉमिस किया है, देयर इज द जॉइंट लायबिलिटी ऑफ द प्रॉमिसर, कि हम तीनों ने एक महीने में तेरे को ये 3,000 रुपया का पेमेंट बैक कर देंगे। ओके, बट व्हाट हैपेंस, आपने एक महीने के बाद मेरा पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे अगर मैं 3,000 रुपया का बात करूं तो if there is the presence of the three persons and the amount in 3,000, तो हर किसी का कितना पार्ट रहा, 3,000 रहा, मेरा 3,000 रहा, मेरा मतलब ए का 3,000 रहा, बी का 3,000, बी का 1,000 रहा, ए का 1,000 रहा, सी का भी 1,000 रहा, हर एक पार्टी का कितना रहा, 1,000 रुपीज रहा, राइट। तो यहाँ पे जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है एंड ये बात बोला जाता है कि चलो देखो बात सिंपल से है, आप तीनों को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, बट मान लीजिए ड्यू टू सर्टन कंडीशंस और ड्यू टू सर्टन रीजंस ए एंड बी बिकेम इंसॉल्वेंट, ए एंड बी लीगली इंसॉल्वेंट बन गए, उनके पास 1 रुपया का भी पैसा नहीं है। देन हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा का जो सारा अमाउंट दैट मीन्स द फुल्लन पैसा ऑफ 3,000 रुपीज ये किससे लिया जाएगा, ये मुझसे लिया जाएगा, बिकॉज आई एम ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम ए पार्टी टू द जॉइंडर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो जॉइंट प्रोमिसर की बात हो रही है ना, तो आई एम ऑल्सो ए जॉइंट प्रोमिसर इन दिस काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑल्सो लायबल टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, क्लियर? देन दूसरा इलुस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी प्रॉमिस टू पे डी द सम ऑफ 3,000 रुपीज। C is compelled to pay the whole. A is insolvent, but his assets are sufficient to pay half of the debt. C is entitled to receive 500 rupees from A's estate and 1,250 of the rupees from B. Okay? तो यहाँ पे दूसरा सिचुएशन मान के चलिए, वही ए बी सी तीनों को कंसिडर करके चल रहे थे हम लोग। पहला सिचुएशन हमें क्या दिखा कि
ए बी सी तीनों ने किस चीज का प्रॉमिस किया कि हाँ वो मेरे को 3,000 रुपए देंगे, बट बाय द सर्कमस्टेंसेस क्या हो गया, बी और सी और ए में किसी एक का डेथ हो गया। तो वहां पे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अनदर पर्सन हु आर अलाइव टू कंप्लीट द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस पे ए बी एंड सी ने प्रॉमिस किया है बट ए या एंड सी ने पैसा नहीं दे रहे हैं, देन आई कैन स्यू माई मनी फ्रॉम आइदर ए और आइदर बी और आइदर सी। आई एम द प्रोमिजी। मेरे लिए प्रोमिजर कौन है, जॉइंट प्रोमिजर से मेरे को जो 3,000 रुपए का प्रॉमिस किया है उन्होंने किसने किया है, तीन लोग साथ मिलके किए हैं। वो तीन लोग कौन है, ए किया है, बी भी किया है, सी भी किया है, राइट। उन तीनों ने बोले कि हम तीनों मिले के तेरे को पैसा दे देंगे। तो ए का कितना हुआ 1,000, दो बी का कितना हुआ 2,000, 1,000 और सी का कितना हुआ 1,000। हर किसी का 1,000 रुपया मुझे पे करनी है, राइट। तो यहाँ पे जो बात है ना कि मैं यहाँ पे अगर पैसा क्लेम करने का बात आता है तो मैं किससे कर सकती हूँ, तीनों से कर सकती हूँ या फिर तीनों में से किसी एक से भी कर सकती हूँ। आइदर आई कैन डू द क्लेम फ्रॉम होल ए बी एंड सी और आइदर आई कैन डू द क्लेम आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी और फ्रॉम सी। ए बी सी तीनों में से किसी से भी कर सकती हूँ या फिर ए बी सी तीनों से एक साथ भी मैं मेरा पैसा का क्लेम कर सकती हूँ। ये गया आपका पहला चीज। दूसरा चीज हमने जो अभी अभी क्लास बी में डिस्कस किया, मान लीजिए ए बी सी तीनों लोगों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया है कि दे आर गोइंग टू पे 3,000 ऑफ द रुपीज। बट यहाँ पे क्या होता है ना, बी बिकम्स बैंकरप्ट। बी जो है ना बैंकरप्ट बन गया, तो उसका जितना सारा प्रॉपर्टी है अगर उसी को बेचा दिया जाए तो उसी का जितना कर्जा है ना उस कर्जे का हाफ हाफ पार्ट ही चुका जा सकता है। दैट मीन्स जैसे कि मैंने बोला कि ए बी सी अगर तीनों ने मिलके मेरे से 3,000 रुपया लिया है तो हर किसी का डिपार्टमेंट पे हर किसी का पार्ट में कितना रुपए का कर्जा आता है, 1,000 का कर्जा आता है। द अमाउंट इज 1,000 ऑफ द रुपीज, राइट। बट बी का जितना सारा प्रॉपर्टी है एज बी बिकेम द बैंकरप्ट, उसी को बेचने के बाद वहां से कितना पैसा निकल रहा है, इट इज जस्ट अमाउंट ऑफ द 500 रुपीज, 500 रुपया ही निकल रहा है। तो वो जो 500 रुपया बी का अमाउंट बी का प्रॉपर्टी बेचने के बाद निकल रहा है उसको क्या करें, उसको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलना है कि अरे ये तो बैंकरप्ट हो गया इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आपने अगर बैंकरप्ट भी बन गए ना, आपने अगर किसी से कर्जा लिया है तो आपका प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा आपको। एंड प्रॉपर्टी बेचने के बाद जितना पैसा आएगा वो पैसा पहले किसके पास जाएगा, आप जिससे उधार लिए थे ना उसके पास ही जाएगा पहले पैसा। तो यहाँ पे जो 500 रुपीज टोटल कितना था, 3,000 रुपया था। ए का डिपार्टमेंट कितना था 1,000, बी का कितना था 1,000, सी का कितना था 1,000। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो 1,000 रुपीज की बात है, बी का सारा प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी द अमाउंट इज 500 ऑफ द रुपीज। पैसा कितना बच रहा है, 500 रुपया बच रहा है। सो वो 500 रुपया उसने दे दिया, बाकी अब बी के पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल ही इज टोटली ब्लैंक। एंड हु एल्स केम, ए एंड सी, दोनों पार्टी बाकी है अभी, राइट। तो यहाँ पे ए एंड सी डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है अभी हम दोनों को ही पे करना है। Now the amount need to be paid by A and C both. That is 1,250 रुपीज ईच। क्योंकि 3,000 से अगर आप 500 रुपया माइनस करते हैं तो कितना रुपया बचता है, 2,500 of the rupees. 2,500 of the rupees divided by 2, that comes under 1,250 rupees. Okay, 1,250 रुपया ए को पे करना है, 1,250 रुपया सी को पे करना है। क्या, क्योंकि यहाँ पे एज ए बिकेम द बैंकरप्ट उसी का 1,000 का जो अमाउंट है उसने पे नहीं कर पाया, उसने कितना किया 500 रुपया किया। बाकी जो 500 रुपया है दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड अंडर बी ए एंड सी। ए ने 250 करेगा, सी भी 250 करेगा, इंक्लूडिंग देयर ओन अमाउंट, एंड द अमाउंट इज 1,250। ये एक सीन हमने डिस्कस किया।
तीसरा सीन क्या है, ए बी एंड सी आर अंडर द जॉइंट प्रॉमिस टू पे सी द 3000 ऑफ द रुपीज. सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग एंड ए इज कंपेल्ड टू पे द होल. A is entitled to receive the 1500 rupees from B. Okay. तो यहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन, यहाँ पे ऐसा होता है कि ए बी सी तीनों पार्टी है. ओके. मान लीजिए सी बिकेम बैंकरप्ट. सी क्या होता है ना, बैंकरप्ट हो जाता है, उसी के पास फूटी कोड़ी नहीं बचता है कुछ भी देने के लिए. पिछले वाला जो हम बात किए थे ना, उसके पास तो एटलीस्ट 500 रुपया था, उसका प्रॉपर्टी बेचने के बाद 500 रुपया निकल रहा था. बट मान लो इसका प्रॉपर्टी बेचने के बाद 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है इसके पास, छोड़ दो इसी को. ओके. बट इसने 1000 का कर्जा ले लिया है, बट अभी पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसका छोड़ दो. ओके. तो अभी कितना पैसा बचा, 3000 रुपया. पार्टी कितने बचे, दो. कौन कौन, ए एंड बी. सी तो कट गया बिकॉज दैट पर्सन बिकम द बैंकरप्ट. तो यहाँ पे जो दोनों पार्टी बचे हैं, दोज पार्टीज आर ए एंड बी. ओके. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स द ए एंड बी बोथ आर द पार्टीज. तो यहाँ पे हर किसी को कितना देना पड़ेगा, 1500 रुपया देना पड़ेगा, बिकॉज द होल अमाउंट इज 3000 ऑफ द रुपीज. हर किसी का कर्जा कितना था, 1000 रुपया था. बट यहाँ पे ए एंड सी को अपना अपना कितना देना था, ए को 1000 देना था, सी को भी 1000 रुपए, 1000 रुपीज देना था. ओके राइट. बट यहाँ पे क्या हुआ, बी बिकेम इंसॉल्वेंट. बी का कितना हुआ, 1000 ऑफ द रुपीज, दैट इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय द 2. एंड ए को देना पड़ेगा 1500 रुपया, सी को देना पड़ेगा बी को देना पड़ेगा 1500 रुपया. एंड बिकॉज ऑफ सी बिकेम द इंसॉल्वेंट, तो सी को यहाँ पे कोई पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. पैसा पेमेंट करने पड़ेगा तो ए और बी को करना पड़ेगा. एंड दैट टू 3000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1500 रुपीज ईच देना पड़ेगा किसी को, टू द प्रॉमिजी. ओके. एंड द लास्ट सिचुएशन, A and B and C are under the joint promise to pay 3000 of the rupees. A and B being the sureties for the C has to pay. A and B are compelled to pay the whole sum and they are entitled to recover it from C. Okay. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि A, B, C are under a joint promise to pay 3000 of the rupees. Joint promise क्या किया कि 3000 रुपए देने का joint promise किया. A and B being the sureties for the C. यहाँ पे पहले हम क्या बोले, जॉइंट लायबिलिटी का बात कर रहे थे, जॉइंट प्रोमिसर की बात कर रहे थे. बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, सियोरिटी की बात कर रहे हैं. प्रोमिसर और सियोरिटी पे बहुत डिफरेंस है. प्रोमिसर कौन है, जो प्रॉमिस करता है, जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोमिसर. और सियोरिटी कैन है, मतलब मैं आपको कुछ प्रॉमिस करती हूँ कि चलो मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगी, बट आपका मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि हाँ मैम मेरे से 10,000 ले रहे हैं तो मुझे वापस करेंगे. तो मैं यहाँ पे आपके सामने दो सियोरिटी रख के जाती हूँ. दो सियोरिटी सर मान लो ए एंड बी, उनको बोल के जाती हूँ कि आप सियोरिटी के हिसाब से साइन करो कि मैं इसको 1 महीने के अंदर 10,000 रुपीज वापस कर दूंगी. अगर नहीं किया, अगर मैंने पैसा वापस नहीं किया, देन मेरे लिए पैसा कौन भरेगा, माई सियोरिटीज विल पे द मनी. वो लोग ये सियोरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं ये इंसान के ऊपर आप भरोसा नहीं करते हो, बट हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो. अगर इसी ने आपका पैसा नहीं लौटाया तो आपका पैसा हम आपको लौटा देंगे. तो इन दैट केस व्हेन टू पर्सन्स हैज बीन साइंड एज द सियोरिटी, देन इन दैट केस मान लो देयर इज ए पर्सन हुज नेम इज सी, एंड सी ने क्या किया, ए एंड बी बोथ आर द सियोरिटीज ऑफ द सी. ए एंड बी किसका सियोरिटी है, सी का सियोरिटी बन गए, राइट. तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आता है जहां पे सी को बोला जाता है कि आप अपना 3000 का रुपया जो आपने मतलब लोन लिया था, डेप्ट लिया था, वो वापस करो. सी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वापस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. देन इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, in the place of the C, the sureties, those are the A and B, they are liable, they are compelled to pay the sum of the 3000 rupees. A को देना पड़ेगा 1500, B को देना पड़ेगा 1500, because C यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाई. Okay, clear? So this was about the section 43 of the compelling of the performance of the joint promises. Okay.
तो जॉइंट प्रोमिसर का ये जो परफॉर्मेंस की हमने बात किया, हमने यहाँ पे बेसिकली ये चीज डिस्कस किया कि ए बी सी मान लो तीन पार्टीज है। अगर मैं एक पार्टी हूँ एंड ए बी सी हैज जॉइंटली डन द प्रॉमिस टू मी, उन तीनों ने मिलके मुझे जॉइंटली कोई प्रॉमिस किया है, देन दे नीड टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस जॉइंटली। अगर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, इफ आई वांट द प्रॉमिस टू बी परफॉर्म, देन आई कैन स्यू देम जॉइंटली, मैं उन तीनों को जॉइंटली स्यू कर सकती हूँ, या फिर मैं उन तीनों से किसी एक को भी पकड़ सकती हूँ, आइदर ए को, आइदर बी को, आइदर सी को। और ये बोला जाता है अगर ए बी सी के बीच में किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है, इंसॉल्वेंट बन जाता है, by somehow reason one person becomes insolvent and incapable to perform the contract, then in that case बाकी जो दो लोग बचे होते हैं ना, उन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह परफॉर्म करना मैंडेटरी बनता है। ये जो हम 3,000 रुपए का बात कर रहे थे ना, अगर इस सिचुएशन पे और एक सिचुएशन आपको बता दूं जो कि आपका इलस्ट्रेशन पे नहीं है। अगर ए एंड बी दोनों का तबीयत खराब हो जाता है एंड यहाँ पे 3,000 रुपए वापस पे करने का बात आता है, ए एंड बी बोथ आर अनेबल टू पे द अमाउंट, उनका तबीयत खराब है, वो लोग इनकम्पिटेंट बन गए पैसा देने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, even though A, B, C and the joint promisor for the rupees of the 3,000, here C is only and only liable to pay the whole amount. C को अकेले पूरा amount देना पड़ेगा, because even if it's the joint liability, as A and B are unavailable to perform the promise, C himself is bound to perform the promise fully. Clear? समझ में आया? So just let me know if there is any doubt. कुछ चीजों पे डाउट है? विनीता, करीना, आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है टिल सेक्शन 43? या 43 तक कुछ डाउट है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर रैपिंग अप द क्लास ओवर हियर। 10 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे इन द क्लास ऑफ द हिंदू लॉ। ओके, सी यू सून, बाय।